Hello everyone, lecture number 5, subject name DBMS, third semester, Diploma Computer. Uh, Today's our topic is integrity constraint. Okay. In last lecture, we have discussed about the commands, DDL command, DML command, and DCL command. So in DDL command, we have discussed 5 commands: create, alter, drop, rename, and truncate. DML command, data manipulation language, we have discussed 4 commands: select, insert, delete, update. And DCL commands, DCL data control language commands, we have discussed 5 commands: commit command, rollback command, grant command, revoke command, and save point command. Okay, so you should uh, remember and memorize the syntax of the all commands. Create commands: create table, table name, then open parenthesis, column name and data type, and same as second column, column 2 data type, and so on. For alter command, there are two subcategory in alter command. First is the add the new column in a schema. Second is the modify existing column in schema. Modify the size of existing column of schema, right? Syntax is alter table, table name, add column name, data type. And second one, alter table, table name, modify column name and data type. We should increase the data type, right? Third is the drop command, drop table, table name, right? Drop is a keyword, table is a keyword, and table name. Then rename command, rename old table name to new table name, right? And truncate command, syntax is truncate table, table name, right? Same as the DML syntax, select star from table name and select star from table name where condition. Insert command, syntax insert into table name values and pass the value of the column. Delete command, syntax delete from table name. Update command, syntax update table name, set column name equal to value where condition, right? So you should remember the syntax of the all commands because it is very important, right? Today we are discuss about the integrity constraint, right? So we will start. What is the integrity and what is the constraint? Integrity means the completeness, purity, right? Completeness without error, right? So security and integrity of a database is the most important factor in judging the success of system, right? For success of the any system depends on the security and integrity of the database. For example, banking system, railway reservation system, airway reservation system, all system are depends on the security and integrity of the database. Integrity constraint is a mechanism to prevent invalid data entry into the table and maintain data consistency, right? It prevent the entering the invalid entry in our database, right? Constraints means rule which we define the different constraint later on, right? So integrity constraint, what it provide, it mechanism to prevent invalid data entry into the database and maintain database consistency. ओके, व्हाट इज डेटा इंटीग्रिटी? अगर मैं बोलूँ एग्जांपल लूँ, सो इफ वी ट्रांसफ़र द अमाउंट बाय यूपीआई ऐप, फॉर एग्जांपल फोन पे, so there should be must
maintain the integrity of data. Means what? User 1 transfer the amount to user 2, right? If user 1 transfer the 500, okay, the 500 rupees must be deducted in user 1 account, right? And 500 rupees must be credited in user 2 account, right? Okay, so transaction, if transaction is successful, then integrity maintain, otherwise integrity failed. Okay, so ये क्या डिपेंड करता है? ट्रांजेक्शन की कंप्लीटनेस पे। अगर वहाँ पे यूज़र 1 के अकाउंट से डिडक्ट हो रहा है, यूज़र 1 में क्रेडिट नहीं हो रहा है, या यूज़र 1 में क्रेडिट हुआ मगर यूज़र 2 में क्रेडिट हुआ, यूज़र 1 में डेबिट नहीं हुआ, तो this is a incompleteness of transaction, and there is a integrity and security problem. So success of the any system depend on the integrity of your database, right? So there are very important questions regarding lecture number 5. We will discuss later. First we discuss about the topics of the integrity constraint. Okay, so integrity constraint are set of rules. It is used to maintain the quality of information, right? And integrity constraint ensure that the data insertion, updation and other processes have to be performed in such a way that data integrity is not affected. Okay, so we can define the integrity constraint used to enforce limit to the range of data. Okay, we define the range of the data or type of data that can be inserted, updated, deleted from a table, right? So we define the limit of the data and we define the type of the data that can be inserted, updated and deleted from table. The purpose of the integrity constraint to maintain the data consistency, right? As we already explained you, so security is maintained in a database, right? So success of the system depend on the database integrity. Okay, the types of database integrity, types of integrity constraint in database. First is the domain integrity constraint, right? Domain means what? Domain means tuple, row, tuple, domain, all are same thing. Okay, we can call row as a domain and also a tuple, domain and the row. Okay, three words are same meaning, right? So domain integrity constraint not null. If we define any column as a not null, okay, if we insert null value and nothing into the that row, that it may create a error. Second is a unique. Okay, unique constraint, domain constraint define the uniqueness of your table, means uniqueness of the values. For example, if we insert data for roll number 1 in our database, then we never again insert the database for roll number 1 because it was already inserted into database. Okay, is that clear? Okay, the unique key, unique constraint define uniqueness of database, uniqueness of data in data table, right? Third is the default. Okay, default constraint define and indicate that if user not inserted any value, so system and database automatically define some value. For example, we define a column city and we cannot insert a value, okay, for city, then system automatically take a default value which is the defined by the data DBA. So for our example, we will take any city name Boisar as a default value, right? Fourth is a check constraint. Check the what? Check the data, means if you want to accept data for
which user age is more than 18 years, 18 plus. So we will define the check constraint. Check age is greater than 18. If age is less than 18, then it will generate error, right? So domain constraint can be defined as the definition of valid set of values for an attributes. Okay, so it defines the valid set of values for an attributes. We will later slide about in briefly about all the constraint. In entity integrity constraint, here entity means table, right? Domain means row, tuple, right? Okay, row, tuple or column, right? And the entity means table, right? So primary key, constraint name is the primary key. The entity integrity constraint state that primary key value cannot be null. Okay, so if you want to define some table level column as a primary key, so we cannot insert a null value in a table. Okay, just remember it, we will discuss it later, right? Referential integrity constraint, the constraint name is a foreign key. Referential integrity constraint is a specified between two tables, right? Primary key working on a single table while foreign key working on a two tables. In the referential integrity constraint, if a foreign key in a table 1 refers to the primary key of the table 2, right? So means what? Foreign key of table 1 refer the primary key of the table 2nd, then every value of the foreign key in table 1, okay, every value of foreign key in table 1 must be null or be अवेलेबल इन टेबल 2, राइट? अब यहाँ पे देखो मैं समझाता हूँ, यहाँ पे दो टेबल है, टेबल 1 एंड टेबल 2. टेबल 1 का एक कॉलम टेबल 2 के दूसरे कॉलम को क्या करेगा? रेफर करेगा, और टेबल 2 का वो कॉलम प्राइमरी की होगा. तो टेबल 1 का जो फॉरेन की हमने लिया है, जो की रेफर कर रहा है टेबल 2 के कॉलम को, तो टेबल 1 का जो फॉरेन की होगा या तो वो नल होगा, तो या तो फिर वो टेबल 2 की प्राइमरी की का कोई वैल्यू होगा. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट डेटा लेते हैं. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट का जो क्लास रिकॉर्ड है, राइट, रिजल्ट है, और जो इंटरनल रिजल्ट है या अटेंडेंस रिकॉर्ड है, राइट, उसको मुझे मैच करना है अकाउंट के फीस टेबल के साथ. तो स्टूडेंट का टेबल डिपार्टमेंट में स्टूडेंट डिटेल्स और स्टूडेंट फीस डिटेल का टेबल अकाउंट में. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टूडेंट डिटेल टेबल जो डिपार्टमेंट में है, उसमें से एक रोल नंबर को मुझे एज अ फॉरेन की लेनी पड़ेगी, और वो जो टेबल 2 है स्टूडेंट फीस, वहाँ का जो प्राइमरी की है उसको रिफ़र करना पड़ेगा. वो हम सिंटेक्स वाइज आगे देखेंगे, राइट? तो मेरा जो टेबल है स्टूडेंट डिपार्टमेंट का जो टेबल है, उसमें जो रोल नंबर है वो या तो फिर नल रहेगा, या तो फिर वो स्टूडेंट फीस के टेबल की रोल नंबर के साथ मैच करना कंपलसरी है, राइट? वो हम आगे देखेंगे, राइट? तो यहाँ पे टोटल कंस्ट्रेंट हुए 4 + 2 6, नॉट नल, यूनिक, डिफॉल्ट, चेक, प्राइमरी की एंड फॉरेन की, राइट? सो फर्स्ट वी विल सी डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट नॉट नल, राइट? सो हियर इज द सिंटेक्स. क्रिएट इज अ कीवर्ड, टेबल इज अ कीवर्ड, एंड टेबल नेम इज अ स्टूडेंट. ऑलरेडी ये टेबल हमने लेक्चर नंबर 4 में देखा है, वही टेबल है सेम. यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मुझे रोल नंबर को नॉट नल डिफाइन करना है. यानी अगर मैंने वैल्यू नल इंसर्ट किया तो वहाँ पे एरर आना चाहिए. मस्ट हम देखो, कोई भी वेबसाइट में हम अगर साइन अप करते और हमने नेम नहीं डाला तो वहाँ पे एक एरर आता है, प्लीज़ एंटर योर नेम, प्लीज़ एंटर फ़ोन नंबर, वॉट एवर, ऐसे मैसेज आता है. तो वो चीज़ हम डेटाबेस से डिफाइन करेंगे, राइट? तो रोल नंबर 2, राइट, एंड नॉट नल डायरेक्ट लिखना है, कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, बोथ आर एक्सेप्टेबल. नॉट नल यानी रोल नंबर नॉट नल, यानी वहाँ पे नल वैल्यू नहीं आएगा, और इंसर्ट करने के टाइम पे हमको कंपलसरी वैल्यू डालना पड़ेगा. नेम वेरकेर 50 नॉट नल, तो नेम को भी कंपलसरी डालना पड़ेगा. फ़ोन नंबर भी कंपलसरी इंसर्ट करना पड़ेगा.
एंड सिटी को भी कंपलसरी इंसर्ट करना है। सिटी के बाद सिटी वेयर 50 नॉट नल के बाद यहाँ पे हमको कोमा नहीं देना है, राइट। और यहाँ पे टेबल को यहाँ पे क्लोज करना है। इसको सिलेक्ट करके रन करेंगे तो टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब देखो करेक्ट वे, देखो मैंने नीचे बताया है वैल्यू अगर हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट क्वेरी आपको याद रखना है जो चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा। चैप्टर नंबर 4 का वीडियो एक बार देखो, उसके बाद फिर से इसको देखो, राइट। तो सारे कमांड्स के जो सिंटेक्स है आपको लाइफ टाइम वो काम आने वाले हैं। आपको लाइफ टाइम वो कोई भी डेटाबेस के साथ जाओगे तो वहाँ पे आपको ये ही क्वेरी यूज़ करना है, तो उसको रिमेंबर कर लो, याद कर लो, राइट। तो इंसर्ट का करेक्ट सिंटेक्स है यहाँ पे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज़ रोल नंबर 1, नेम राहुल, फ़ोन नंबर एंड सिटी बोईसर, राइट। तो यहाँ पे सारी वैल्यू मैंने डिफाइन की है, राइट। तो और सेमी कॉलन देकर अगर ये कमांड में रन करूँगा तो वहाँ पे वैल्यू इंसर्टेड सक्सेसफुली ये मैसेज आएगा। अगर मैंने दूसरा इनकरेक्ट सिंटेक्स जो नीचे लिखा है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू रोल नंबर और नेम, रोल नंबर और नेम ही खाली डालना है, राइट। फ़ोन और सिटी नहीं डाला मैंने, वहाँ पे ऑटोमेटिकली नल जाएगा। अगर मैंने इंसर्ट नहीं किया तो नल जाएगा। तो सिस्टम विल जनरेट द एरर, ओके, बिकॉज फ़ोन एंड सिटी ऑल्सो नॉट नल, राइट। और अगर हमको टेबल में खाली रोल नंबर को ही नॉट नल रखना है तो वह खाली रोल नंबर को नॉट नल लिखो, बाकी सबको वहाँ से नॉट नल हटा दो, राइट। तो वी कैन डिफाइन नॉट नल फॉर अ सिंगल कॉलम एंड ऑल्सो अ मल्टीपल कॉलम इन अ सिंगल टेबल, यानी मल्टीपल कॉलम को भी हम नॉट नल डिफाइन कर सकते हैं या फिर सिंगल कॉलम को भी हम नॉट नल डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉट नल क्लियर हुआ, राइट। तो क्या करना है, खाली नॉट नल का कॉलम नेम डेटा टाइप के बाद नॉट नल का कीवर्ड लिखना है, ओके। उसके बाद सेकंड जो है यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई द रो, यानी यूनिक वैल्यू को इंसर्ट करता है, राइट। तो क्रिएट टेबल नेम रोल नंबर 2 यूनिक, तो रोल नंबर को हमने क्या रखा, यूनिक रखा है, राइट। और बाकी का टेबल सेम है, राइट। एंश्योर डेट ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम आर डिफरेंट, यानी सारी वैल्यू डिफरेंट होगी यूनिक कंस्टेंट के अंदर, राइट। अगर मैंने रोल नंबर 1 दिया, जैसे कि ये प्रीवियस एग्जांपल में यहाँ पे मैंने राहुल को रोल नंबर 1 दिया है, राइट। अब सचिन को भी रोल नंबर 1 दूंगा और मैंने यहाँ पे यूनिक कंस्टेंट डिफाइन किया, तो रोल नंबर 1 दो बार इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है ना। क्लास में दो रोल नंबर किसी दो स्टूडेंट को असाइन नहीं कर सकते, यानी किसी एक स्टूडेंट को, यानी रोल नंबर 1 का एक ही स्टूडेंट होगा, रोल नंबर 1 के दो स्टूडेंट नहीं होंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने रोल नंबर को यूनिक डिफाइन किया है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, रोल नंबर यूनिक हो जाएगा, यानी यूनिक वैल्यू हो जाएगा, यानी एक वैल्यू एक ही बार रिपीट होगा, दूसरी बार वैल्यू रिपीट नहीं होगा। अगर वो रोल नंबर 1 इंसर्टेड है तो रोल नंबर 1 हम फिर से इंसर्ट नहीं कर सकते, फिर हमको रोल नंबर 2, 3, 4, 5 वट एवर हमको इंसर्ट करना है, राइट। तो ये यूनिक कंस्ट्रेंट हो गया, राइट। उसके बाद है डिफ़ॉल्ट। अब मैंने बोला था कि अगर हमने वैल्यू इंसर्ट नहीं किया है, राइट, जैसे कि रोल नंबर यूनिक किया, नेम नॉट नल किया, फ़ोन को मैंने कोई कंस्ट्रेंट नहीं दिया है, राइट। सिटी वेयर 50 डिफ़ॉल्ट बोईसर। तो अगर मैंने यहाँ पे ये जो क्वेरी मैंने यहाँ पे पास किया था वैल्यूज़, वहाँ पे मैंने अगर सिटी को मैंने नल रखा तो बाय डिफ़ॉल्ट सिटी क्या इंसर्ट हो जाएगा, बोईसर। अगर इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज रोल नंबर 1, नेम सचिन, फ़ोन नंबर 9898 समथिंग, एंड वहाँ पे बस 3 चीज़ जाके मैंने सेमी कॉलन मार दिया और सेमी कॉलन दे के कमांड को रन किया, तो वहाँ पे जो है ना सिटी बाय डिफ़ॉल्ट सचिन का सिटी क्या आ जाएगा, बोईसर। तो हमने अगर वैल्यू इंसर्ट नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ पे क्या आ जाएगा, बोईसर, राइट। और उसके बाद है चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट यहाँ पे हमने क्या किया, रोल नंबर को कंस्ट्रेंट नहीं दिया है, फ़ोन नेम को कंस्ट्रेंट नहीं दिया है, फ़ोन नंबर को हमने क्या दिया है, चेक फ़ोन नंबर इज़ ग्रेटर देन व्हाट 100, यानी 10 से नीचे रहेगा तो वहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो वहाँ पे 10 नंबर ही इंसर्ट हो गया, राइट। और सिटी को हमने कोई कंस्ट्रेंट नहीं दिया है, राइट। तो यहाँ पे अगर हमने 1 2 3 4 डाल दिया, यानी कोई भी नंबर डाल दिया जो 10 से कम है, वहाँ पे एरर देगा, फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर मस्ट बी 10 digit, right. The check constraint ensure that the all value in the column satisfy certain condition, यानी ये कंडीशन यहाँ पे कि फ़ोन नंबर 10 होना चाहिए, कंपलसरी फ़ोन नंबर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एज पर द आवर डेटा वी डिफाइन द डिफरेंट कंस्ट्रेंट, राइट, नॉट नल एंड यूनिक वैल्यू इंसर्ट करने के लिए, एंड डिफ़ॉल्ट अगर वैल्यू इंसर्ट नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट,
वैल्यू जाएगा। और अगर हमको कोई चीज़ कोई रेंज चेक करना है, जैसे फ़ोन नंबर है, तो अगर फ़ोन नंबर अगर 10 से कम इंसर्ट किया तो वहाँ पे यहाँ पे एरर क्या होगा, जनरेट होगा, राइट। तो यहाँ पे चेक कंस्ट्रेंट हो गया, चारों कंस्ट्रेंट हमने पढ़ लिए। ओके, नॉट नल, यूनिक, डिफ़ॉल्ट एंड चेक। उसके बाद आता है एंटिटी कंस्ट्रेंट। एंटिटी मीन्स टेबल, राइट। ईआर मॉडल में एंटिटी बोलेंगे और रिलेशनल मॉडल में उसको टेबल बोलेंगे। तो एंटिटी मीन्स टेबल। तो ये जो आगे के चार जो कंस्ट्रेंट है वो कॉलम पे यानी कॉलम पे इफेक्ट करेंगे, राइट। यानी कॉलम, एक कॉलम के ऊपर हम डिफाइन करेंगे। मगर ये जो प्राइमरी की है एंटिटी कंस्ट्रेंट है वो पूरे टेबल को यहाँ पे क्या होगा, अफेक्ट होगा, पूरे टेबल पे उसका अफेक्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे हमने प्राइमरी की डिफाइन करना है। तो प्राइमरी की इज अ कीवर्ड, राइट, फॉर डिफाइनिंग द प्राइमरी की। रोल नंबर 2 प्राइमरी की, बाकी का पूरा टेबल सेम है, राइट। दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ द कॉलम लेवल प्राइमरी की। अब एक बात याद रखो, हमने यूनिक की को दूसरे कॉलम को भी यूनिक बोल दे सकते हैं, 2 बार यूनिक कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं एक ही टेबल में, 2 बार नॉट नल कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं एक ही टेबल में, 2 बार चेक कंस्ट्रेंट यूज़ कर सकते हैं एक ही टेबल में, राइट। और 2 बार डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं एक ही टेबल में। मतलब प्राइमरी की ये टेबल लेवल पे है, यानी पूरे टेबल में एक ही बार प्राइमरी की का कीवर्ड यूज होगा, राइट। जैसे रोल नंबर 2 प्राइमरी की, तो रोल नंबर प्राइमरी की हो गया। नेम वर्कर प्राइमरी की, तो वहाँ पे हम प्राइमरी की यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो वहाँ पे है ना एरर देगा, यानी प्राइमरी की का कीवर्ड टेबल में एक ही बार आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, यूनिकली डेफिनेशन ऑफ द प्राइमरी की, यूनिकली आइडेंटिफाई द ईच रोज एंड रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस टेबल, राइट। यूनिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द व्हाट, रो यानी टपल और रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस। तो प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की अगर मैं बोलूँ ना तो दो कंस्ट्रेंट का कॉम्बिनेशन है। पहला कंस्ट्रेंट है हमारा नॉट नल और दूसरा कंस्ट्रेंट है हमारा यूनिक, राइट। तो प्राइमरी की इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 कंस्ट्रेंट नॉट नल एंड यूनिक। तो प्राइमरी की में नॉट नल भी नहीं आएगा और यूनिक भी नहीं आएगा। मीन्स हमने अगर ये रोल नंबर 1 हम वैल्यू नहीं डालते तो भी एरर देगा, अगर वैल्यू रिपीट हो रहा है तो भी एरर देगा, राइट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है या इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी की एंड यूनिक की, राइट। तो प्राइमरी की और यूनिक की का डिफरेंस यही है कि प्राइमरी की तो एंटिटी कंस्ट्रेंट है और जो यूनिक की है डोमेन कंस्ट्रेंट है, राइट। वी कैन यूज मल्टीपल यूनिक कीवर्ड्स इन अ सिंगल टेबल बट वी कैन नॉट यूज मल्टीपल प्राइमरी की कीवर्ड इन अ सिंगल टेबल, राइट। सेकंड डिफरेंस ये हो गया। तीसरा उसका सिंटेक्स हो गया। और मेन डिफरेंस ये है कि प्राइमरी यूनिक की में एक नल वैल्यू इंसर्ट होगा, राइट। अगर एक बार यूनिक हमने यहाँ पे देखो यूनिक की मैंने डिफाइन किया है, ये यूनिक को रोल नंबर, अगर मैं एक नल वैल्यू पास करूँगा क्योंकि नल इज ऑल्सो यूनिक, राइट। एक बार नल वैल्यू टेबल में पास होगा, राइट। दूसरी बार नल वैल्यू पास नहीं होगा क्योंकि दूसरी बार वो यूनिक नहीं रहेगा और नल वैल्यू टेबल में रहेगा, राइट। अगर रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, 3 सो ऑन, उसके बाद वो पास हो जाएगा। तो यूनिक की में एक नल वैल्यू एटलीस्ट पास होगा एक बार, मतलब दूसरी बार नल वैल्यू पास करेगा तो वो यूनिक नहीं रहेगा और वहाँ पे एरर आएगा। मगर प्राइमरी की में क्या है कि एक बार भी नल वैल्यू पास नहीं होगा, यानी एक भी नल वैल्यू नहीं होगा और वहाँ पे सारे जो है ना डेटा होगा यूनिक होगा। यानी रोल नंबर 1 अगर हमने इंसर्ट कर दिया है तो हम रोल नंबर 1 फिर से इंसर्ट नहीं कर सकते। रोल नंबर 2, इफ रोल नंबर 2 ऑलरेडी इंसर्टेड देन वी कैन नॉट इंसर्ट द रोल नंबर 2 अगेन, राइट। तो ये डिफरेंस है प्राइमरी की का और यूनिक की का, राइट। तो प्राइमरी की में क्या होगा, नॉट नल वैल्यू नहीं रहेगा पर यूनिक की में एक नल वैल्यू रहेगा, राइट। तो ये जो टेबल लेवल पे मैंने डिफाइन किया। अब मुझे क्या करना है, 2 कॉलम को प्राइमरी की डिफाइन करना है, राइट, 2 कॉलम को। तो इसके लिए मुझे ना टेबल लेवल पे प्राइमरी की डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एग्जांपल है, क्रिएट टेबल नेम स्टूडेंट, रोल नंबर 2 नेम वेरकर 50, फोन नंबर 10, सिटी वेरकर 50 एंड प्राइमरी की। तो सिटी के बाद मैंने देखो वेरकर 50 के बाद मैंने कॉमा दिया है, राइट। प्राइमरी की रोल नंबर एंड नेम, तो यहाँ पे 2 कॉलम जो है ना, 2 कॉलम को मैंने प्राइमरी की डिफाइन किया है। जैसे कि रोल नंबर और नेम, तो रोल नंबर और नेम दोनों प्राइमरी की। जैसे कि क्लास में सचिन नाम के 2 स्टूडेंट है, राइट,
तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि रोल नंबर 1 सचिन दोनों कंबाइन प्राइमरी की एक्ट करेगा, और रोल नंबर 2 सचिन तो ये कंबाइन प्राइमरी की करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों कॉलम कॉम्बिनेशन में कंबाइन में क्या करेंगे, एज ए प्राइमरी की क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो वी कैन डिफाइन मल्टीपल कॉलम एज अ प्राइमरी की, राइट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2 and more कॉलम एज अ प्राइमरी की इज कॉल्ड एज द कैंडिडेट की। अगर कैंडिडेट की का डेफिनेशन ये है कि हम क्या करेंगे, मोर देन 1 कॉलम को यानी 2 कॉलम को हम एज अ प्राइमरी की कंसिडर करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की। तो अगर एग्जाम में आया व्हाट इज कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट की इज अ की विच इज द व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 and more कॉलम इन अ सिंगल प्राइमरी की, तो वो हो जाएगा कैंडिडेट की। ओके, तो कैंडिडेट की क्या है, एक कंसेप्ट है। कैंडिडेट की जैसा कोई कीवर्ड हमको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करना है, यानी वो कीवर्ड है ही नहीं, राइट। एक कंसेप्ट है कि प्राइमरी की के अंदर अगर हमने 2 कॉलम को यूज़ किया तो वो कैंडिडेट की है, राइट। और उसके बाद एक आता है सुपर की। तो सुपर की मैं आपको बाद में ही बताऊंगा, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है, राइट। तो यहाँ पे खाली प्राइमरी की याद रखो कि प्राइमरी की को हम क्या करेंगे, अगर 2 से ज़्यादा कॉलम को हमने प्राइमरी की डिफाइन किया है तो उसको कैंडिडेट की बोलेंगे। और सुपर की मैं आपको कभी बाद में बता दूंगा। ओके, इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी कंसेप्ट, राइट। अब जो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट को भी हम क्या टेबल लेवल पे भी डिफाइन कर सकते हैं और कॉलम लेवल पे भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट क्या होगा, 2 टेबल के बीच में होगा। तो हमको यहाँ पे 2 टेबल डिफाइन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल लिए, एक टेबल है सप्लायर का है और दूसरा जो टेबल है प्रोडक्ट का है, राइट। सप्लायर टेबल में कॉलम नेम है सप्लायर आईडी, सप्लायर नेम एंड द कॉन्टेक्ट नेम, यानी जो प्रोडक्ट सप्लाई करता है उसका आईडी है, नेम है एंड क्या है, कॉन्टेक्ट नेम। और सप्लायर आईडी को मैंने एज अ प्राइमरी की डिफाइन किया है, राइट। ये इंपॉर्टेंट है कि पहले टेबल का जो जिसको हम रिफ़र करने वाले हैं वो मस्ट बी एज अ प्राइमरी की होना चाहिए, राइट। दूसरा क्रिएट टेबल प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट टेबल मैंने क्या किया है, यहाँ पे डिफाइन किया है, राइट। प्रोडक्ट आईडी है, यानी जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उसका आईडी है, वो नॉट नल है। और सप्लायर आईडी है, जो सप्लायर आईडी उसका यहाँ पे मेरे ये सप्लायर आईडी प्रोडक्ट का जो सप्लायर आईडी है वो रिफ़र करेगा वैल्यू एंट्री करने के लिए किसका, सप्लायर टेबल का सप्लायर आईडी को। तो यहाँ पे सप्लायर आईडी न्यूमेरिक, उसका डेटा टाइप 10, रेफरेंसेस ये कीवर्ड यूज़ करना है, REFERENCES रेफरेंसेस, सप्लायर आईडी, कॉलम नेम, और कौन सा टेबल है, सप्लायर। तो सप्लायर आईडी सप्लायर टेबल का सप्लायर आईडी को क्या करना है, रेफ़र करना है। और रेफ़र करने के लिए हमने यहाँ पे रेफरेंसेस कीवर्ड लिया है। अब क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट टेबल है उसका सप्लायर आईडी या तो नल रहेगा या तो इसका सप्लायर आईडी वो वैल्यू होगा जो वैल्यू सप्लायर के सप्लायर आईडी में अवेलेबल रहेगा, तो राइट। ये मैं आपको प्रैक्टिकली रन करके बता दूंगा, इसका वीडियो में बता दूंगा प्रैक्टिकल रन करके और एक कल पे, तो वीडियो देख लेना, राइट। तो ये है कॉलम लेवल पे फॉरेन की, राइट। इसमें क्या हमने पहला टेबल लिया उसको प्राइमरी की डिफाइन किया, दूसरे टेबल को क्या करना है हमको, जिसको हमको रेफ़र करना है सब पहले टेबल के कॉलम को हमको रिफ़र करना है, तो वहाँ पे हम रेफरेंसेस कीवर्ड लेंगे, उसके बाद कॉलम नेम देंगे, इन ब्रैकेट टेबल नेम देंगे। तो ये कॉलम लेवल पे हो जाएगा क्या, फॉरेन की। सेकेंड इज द टेबल लेवल फॉरेन की, राइट। टेबल लेवल पे करना है, सेम एग्जांपल है, खाली नीचे मैंने यहाँ पे चेंज किया है, फॉरेन की ये कीवर्ड आएगा, FOREIGN फॉरेन की। सप्लायर आईडी जो ये टेबल का है, सप्लायर आईडी किसका, प्रोडक्ट टेबल का सप्लायर आईडी। रेफरेंसेस REFERENCES रेफरेंसेस कीवर्ड, सप्लायर आईडी किसका, सप्लायर टेबल का, राइट। तो फॉरेन की टेबल कॉलम नेम जो सेम टेबल का, रेफरेंसेस सप्लायर आईडी ऑफ द रेफरेंस टेबल एंड द टेबल नेम ऑफ द रेफरेंस टेबल। यहाँ पे ये फॉरेन की यहाँ पे हो गया, राइट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है, राइट, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमको अब क्या करना है, हमको यहाँ पे जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करना है, और ये जो मैं प्रैक्टिकली करके आपको बताऊंगा, रन करके बताऊंगा, तो आपको करना है, राइट। तो यहाँ पे क्या डिफाइन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या है, इंटीग्रिटी इज अ कंप्लीट नेट प्योरिटी एंड इंटीग्रिटी इज सक्सेस ऑफ द एनी system is depends on a
integrity and security of the system. Integrity is a mechanism to prevent invalid data entry in our table, right? तो ये integrity का definition है. It define the limit and the data type of the data type of the data which is inserted, deleted and updated into the database. इतना सारा बोला, इसमें से दो चार वर्ड निकाल के आप इजीली डेफिनेशन लिख सकते हो, राइट? 2 मार्क्स के लिए अगर आया तो ये इतना कर सकते हैं, राइट? और टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी, डोमेन इंटीग्रिटी, एंटिटी इंटीग्रिटी एंड द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, राइट? एक्सप्लेन नॉट नल एंड द यूनिक कंस्ट्रेंट. जो नॉट नल कंस्ट्रेंट है ना, एग्जाम में 2 से 3 बार पूछ लिया है, राइट? नॉट नल वाला. तो नॉट नल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में हमको क्या करना है? सिंपल ये वाला एग्जांपल बताना है जो मैंने यहाँ पे लिया है, नॉट नल वाला. ये एग्जांपल बताओ और नीचे ये लिखो, उसको एक्सप्लेन कर दो, राइट? कि इफ इन फर्स्ट इंसर्ट क्वेरी इन टेबल वी डिफाइन द ऑल कॉलम एज अ नॉट नल. If we insert the all value, then it will accepted by the database. If we pass any value as a null, it will generate error. तो सिंपल ये लिख के आपको क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है नॉट नल के लिए, राइट? यूनिक कंस्ट्रेंट के लिए क्या करना है? यूनिक की क्या यूनिकनेस मेंटेन करता है. यूनिक में यूनिक की जो कॉलम को डिफाइन किया है, वो कॉलम को एक वैल्यू नल इंसर्ट हो सकता है, मगर दूसरा नल वैल्यू इंसर्ट नहीं हो सकता. यानी एक नल वैल्यू एज अ यूनिक कंसिडर करेगा. उसके बाद क्या है, रोल नंबर जो भी हमने इंसर्ट किया है वो हम इंसर्ट करते जाएंगे. जैसे कि इसका यहाँ पे है, इसका एग्जांपल रोल नंबर टू यूनिक. तो एक बार रोल नंबर हमने नल डाला तो एक्सेप्ट कर लेगा, मगर दूसरी बार नल डाला तो नहीं करेगा. उसके बाद हमने रोल नंबर 1 इंसर्ट किया है, राइट? और रोल नंबर 1 इंसर्ट करने के बाद रोल नंबर 2 इंसर्ट किया है. उसके बाद फिर से अगर हम रोल नंबर 1 इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे एरर देगा, क्योंकि रोल नंबर 1 ऑलरेडी इंसर्टेड है डेटाबेस में, राइट? तो यहाँ पे ये इस तरह यूनिक की डिफाइन होगा, राइट? तो यूनिकनेस इज मेंटेन द यूनिकनेस ऑफ द डेटा, राइट? और प्राइमरी की जो एंटिटी लेवल पे काम करेगा और यूनिक की क्या है, डोमेन लेवल पे यानी कॉलम लेवल पे काम करेगा. थर्ड वन इज द डिफ़ॉल्ट. डिफ़ॉल्ट में क्या है कि अगर यूज़र नल वैल्यू इंसर्ट हो रही है क्वेरी के अंदर, राइट? कि हमने कोई फॉर्म भरा और वहाँ पे है ना, हमने वहाँ पे सिटी कंपलसरी नहीं है और हमने उसको सबमिट किया, तो वहाँ पे सिटी बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, जो भी सिटी हमने डिफ़ॉल्ट में डिफाइन किया है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा. हमने हमारे एग्जांपल में क्या लिया है, सिटी डिफ़ॉल्ट बोईसर. तो हमने अगर यहाँ पे सिटी नल वैल्यू इंसर्ट किया है तो वहाँ पे सिटी बाय डिफ़ॉल्ट बोईसर इंसर्ट हो जाएगा. अगर हमने इंसर्ट नहीं किया इंसर्ट क्वेरी में तो बाय डिफ़ॉल्ट बोईसर इंसर्ट हो जाएगा. उसके बाद चेक कंस्ट्रेंट. चेक कंस्ट्रेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चेक कंस्ट्रेंट रेंज डिफाइन करेगा, राइट? रेंज के लिए हम डिफाइन करेंगे जिसके मोबाइल नंबर. तो ये एग्जांपल आपको लिखना है. यहाँ पे क्या करना है, ग्रेटर देन 10 यानी अगर 10 से नीचे रहा, राइट? अगर हमने फ़ोन नंबर 8 डिजिट का एंटर किया तो वो एरर देगा. यानी यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर की बात हो रही है, जो 10 डिजिट का है, राइट? और हमने अगर 5 डिजिट का इंसर्ट किया तो यहाँ पे एरर देगा. हाँ, 10 नंबर का हमने इंसर्ट किया है तो वहाँ पे वो उसको एक्सेप्ट करेगा, राइट? तो ये एग्जांपल लिखना है. वो क्या करेगा, डोमेन लेवल पे कॉलम को चेक करेगा. तो ये चेक कंस्ट्रेंट भी यहाँ पे हो गया, राइट? और हाँ, एक्सप्लेन चेक कंस्ट्रेंट विद एग्जांपल. तो एग्जांपल आपको लिखना है और उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेन प्राइमरी की विथ एग्जांपल, राइट? प्राइमरी की क्या देना है, प्राइमरी की और यूनिक की जिसका डेफिनेशन मोस्ट ऑफ सेम रहेगा, राइट? क्या रहेगा कि यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड और डेटा इन अ टेबल. बट यानी प्राइमरी की में क्या होगा कि नॉट नल नहीं आएगा, एक भी नॉट नल नहीं आएगा, राइट? और यूनिक की में एक नॉट नल आएगा, राइट? तो प्राइमरी की का हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया है, राइट? अगर ये प्राइमरी की के दो टाइप पे हम क्रिएट कर सकते हैं. एक तो कॉलम लेवल और दूसरा है टेबल लेवल. और एक बात और कि प्राइमरी की का एक ही कीवर्ड एक टेबल में आएगा, राइट? और यूनिक की के मल्टीपल कीवर्ड हम एक ही टेबल में यूज़ कर सकते हो. प्राइमरी की यहाँ पे हमने यूज़ किया है, रोल नंबर को एज अ प्राइमरी की दिया है. किसके लिए, किसके लिए कि टेबल लेवल प्राइमरी की के लिए, राइट? और दूसरे एग्जांपल में हमने क्या है, कैंडिडेट की यूज़ किया है कि मोर देन 1 कॉलम को एज अ प्राइमरी की लिया, तो उसको हम कैंडिडेट की बोलेंगे, राइट? एग्जाम में अगर कैंडिडेट की आया, एक्सप्लेन कैंडिडेट की विथ एग्जांपल, तो आपको ये वाला टेबल लेवल प्राइमरी की को एक्सप्लेन करना है और वहाँ पे आपको दो कॉलम को डिफाइन करना है फॉर अ कैंडिडेट की, राइट? उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फॉरेन की. हाँ, एक्सप्लेन फॉरेन की विथ एग्जांपल.
तो फॉरेन की के भी दो टाइप है, एक तो टेबल लेवल, दूसरा कॉलम लेवल, राइट। और फॉरेन की भी एक ही कीवर्ड आएगा पूरे टेबल के अंदर, दो बार हम फॉरेन की के कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते सिंगल टेबल के अंदर, राइट। तो यहाँ पे हमको फॉरेन की के दो एग्जांपल जो हमने देखे वो हम फिर से देख लेते हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे जो ये कॉलम लेवल फॉरेन की, अब फॉरेन की जो होगा वो दो टेबल के बीच में होगा, राइट। तो दो टेबल के बीच में होगा तो यहाँ पे हमको दो टेबल डिफाइन करने पड़ेंगे, राइट। तो पहले टेबल का जो प्राइमरी की है उसको ही हम एज अ फॉरेन रिफ़र करेंगे दूसरे टेबल के फॉरेन की का। तो यहाँ पे जो पहले टेबल में क्लाइंट आईडी है वो प्राइमरी की है, सप्लायर आईडी है वो प्राइमरी की है, और दूसरे टेबल में जो सप्लायर आईडी है वो फॉरेन की है, राइट। तो दूसरे टेबल का जो सप्लायर आईडी है वहाँ पे हम ये एक सीधी लाइन में हम लिखेंगे तो भी चलेगा। रेफरेंसेस कीवर्ड यूज़ करना है, उसके बाद सप्लायर आईडी कॉलम का नाम लिखना है, उसके बाद टेबल नेम लिखना है, राइट। तो यहाँ पे ये क्या है, फॉरेन की रन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो सप्लायर आईडी है, प्रोडक्ट का सप्लायर आईडी है, वो या तो फिर नल रहेगा या तो फिर सप्लाई जो प्रोडक्ट का सप्लायर आईडी है उसका वैल्यू कंपलसरी सप्लायर के टेबल में रहना चाहिए। ये टेबल लेवल हो गया, कॉलम लेवल हो गया। दूसरा टेबल लेवल, टेबल लेवल में क्या करेंगे हम लोग, टेबल लेवल पे हम क्या करेंगे, फॉरेन की का कीवर्ड आएगा, सप्लायर आईडी जो हमारा कॉलम नेम वो रेफरेंसेस सेम कीवर्ड आएगा, और टेबल नेम आएगा, कॉलम नेम जिसको हम रेफ़र करने वाले हैं और उसका टेबल नेम, राइट। तो यहाँ पे ये फॉरेन की भी दो तरीके से हो गया। उसके बाद है हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी की एंड फॉरेन की, राइट। अब क्या है प्राइमरी की, पहला डिफरेंस क्या है, प्राइमरी की एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेन है, राइट। एंड फॉरेन की क्या है, फॉरेन की रेफरेंशियल यानी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेन है, राइट। प्राइमरी की एक टेबल में डिफाइन होगा, फॉरेन की डिफाइन करने के लिए दो टेबल हो गए, राइट। प्राइमरी की में प्राइमरी की कीवर्ड यूज़ होगा और फॉरेन की में रेफरेंसेस एंड फॉरेन की कीवर्ड यूज़ होगा, राइट। और प्राइमरी की में नॉट नल वैल्यू नहीं होगा, राइट, और सारे वैल्यू यूनिक रहेंगे, जबकि फॉरेन की में जो की को हमने फॉरेन की यूज़ की है वो या तो फिर नल रहेगा या तो फिर वो जो प्राइमरी की जो टेबल का रेफरेंस लिया है उसकी प्राइमरी की में कोई वैल्यू के साथ वो उसको रेफ़र करेगा, राइट। ओके, तो ये इसका डिफरेंस हो गया। और एक क्वेश्चन और ऐड कर लो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द यूनिक की एंड प्राइमरी की। वो यहाँ पे मैं लिखने का रहेगा, राइट, आपको वो भी करना है। मैं ओके बाद में उसको मैं ऐड कर दूंगा हमारे जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, उसमें वो क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पे ये वीडियो यहाँ पे ही होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लाइफ टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करोगे तो ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है। कोई भी वेबसाइट ये कंस्टेंट के बिना नहीं बनता। आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे वेबसाइट यूज़ किया है और वहाँ पे आप साइन अप भी करते होगे, वैल्यू इंसर्ट भी करते होगे, राइट। तो वहाँ पे आपको मल्टीपल एरर दिखते हैं। अगर आपने कोई मिस्टेक किया तो वहाँ पे मल्टीपल एरर होता है। तो वो कुछ ऑटोमेटिक नहीं होता है, उसके पीछे डेवलपर होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, और उसके पीछे बैकएंड होता है। तो बैकएंड डिफाइन करने के लिए डेटाबेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डेटाबेस ही बैकएंड है। ओके तो सॉफ्टवेयर के दो टाइप होते हैं, तो फ्रंट एंड जिसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं या वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, और बैकएंड में हम डेटाबेस यूज़ करते हैं। तो हर सॉफ्टवेयर के पीछे डेटाबेस होता है, राइट, जो हमारा डेटा मेंटेन करता है, राइट। तो यहाँ पे ये जो लेक्चर है यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ, और इसमें कुछ भी क्वेरी और डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, और यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली। ओके, थैंक यू।